ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک، جلالی اور افضل ترین نام میں آج پھر خداوند کا یہ خاکسار خادم آپ سبوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے اور خداوند کا شکر اور تعریف کرتا ہوں اس بڑے خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند نے میری زندگی میں بخشا ہے کہ میں آپ سبوں کے ساتھ مل کر آن لائن اس فیلوشپ میں اس کی جانے والی پرستش کے وسیلہ سے اور پھر خداوند کے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پانے والا ہو سکوں۔ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند ماضی کی طرح آج بھی اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ آئیے ہم خداوند کے کلام کی طرف دھیان دیں اور اپنے کان اس کی طرف لگائیں، کیونکہ خداوند آج شام مجھ سے اور ہم میں سے ایک ایک سے بات کرنا چاہتا ہے۔ آج کے دن ہم دانییل نبی کے صحیفہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ جو دانییل کی چوتھی رویا جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس کا تعلق نہ صرف دانییل 10 باب سے بلکہ 11 باب سے بھی اور 12 باب سے بھی ہے، جو آخری باب ہے۔ جیسے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں عمل تخلیق کا ذکر ہے اور دوسرے باب میں گویا پہلے باب کی تفسیر نظر آتی ہے، بعین ایسے ہی اس 10 باب میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اصل میں 10، 11 اور 12 ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور جب ہم اس 10ویں باب کا مطالعہ کر رہے تھے اور ابھی کر رہے ہیں، تو اس کی اور زیادہ ایکسپلینیشن اور زیادہ توضیح جب ہم 11ویں باب میں جائیں گے تو پھر ہمیں نظر آئے گی، اور ایون 12ویں باب میں بھی۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح اپنے جلال میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آنے سے پیشتر مقدس دانییل پر ظاہر ہوتے، اور اس کے بعد ہم نے اس حقیقت کو بھی دیکھا ہے کہ کیسے مقدس دانییل کو ایک فرشتہ آ کر تقویت بھی دیتا ہے، پھر خداوند کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر خداوند دانییل کو تسلی دیتے ہیں، کیونکہ 21 دن تک دانییل محو دعا تھا، اور اسی دوران فارس کا موکل، فارس جو موجودہ ایران ہے، اس وقت بھی اس کا موکل اس کو روکے رہا، اور آج بھی ہم فارس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ایران میں، یا اس کی مستقبل کے لیے جو سوچ ہے وہ کیا ہے۔ اس بات کو بھی ضرور یاد رکھیے کہ دانییل اس وقت لگ بھگ 87 سال کا تھا، 87 ایئر اولڈ، اور وہ بابل میں، جو در حقیقت اب بابل تو مادیوں اور فارسیوں کے ماتحت ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کو مفتوح کر لیا تھا،
लेकिन अब नाम उसी का चलता है, अगरचे मादी और फारसी थे, कि अब उनके तहत दानियल वहां पर था। और इस 87 साल की उम्र में खुदा उससे कलाम करता और दानियल खुदा से कलाम करता है। एक बात याद रखने की है, और वो ये है कि खुदा से बात सैमुअल जब अभी बच्चा ही था, तो बचपन में भी वो खुदा से बात करता था। इसका मतलब है खुदा से बचपन में भी बात हो सकती है। और दानियल की जिंदगी के एक्सपीरियंस और तजुर्बा से हमें पता चलता है कि आलमे बुढ़ापे में भी, पीरी में भी खुदा से बात की जा सकती है और खुदा अपने लोगों से कलाम करता और बोलता है। तो खुदा के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए, उसके साथ अपने रिश्ता को उस्तवार रखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। किसी भी उम्र में खुदा के चेहरे के दीदार का तालिब हुआ जा सकता है। इसलिए वक्त को और जिंदगी के इन अयाम को गनीमत समझना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। आज इस बाब के इख्तिताम की तरफ, यानी बाइबल स्टडी को मुकम्मल करने की तरफ हम बढ़ेंगे। 10 बाब यानी दानियल 10 बाब और उसकी 15 आयत से लिखा है, और जब उसने ये बातें मुझसे कहीं, मैं सर झुकाकर खामोश हो रहा। दानियल बोल रहा है रूह कुदस की तहरीक से, अपने शख्सी तजुर्बा से मुताल्लिक। क्या कि जब उसने मुझसे बातें की, मैं सर झुकाकर खामोश हो रहा, तब किसी ने, इससे पहले जो बात कर रहा था, हम मिकाईल मुकर्रब फरिश्ता की बात कर चुके हैं कि वो दानियल से हम कलाम था और उसको हौसला दे रहा था। लेकिन अभी 16 आयत में लिखा है, तब किसी ने जो आदमजाद की मानिंद, आदमजाद की मानिंद था, मेरे होंठों को छुआ। और मुझे तो यूं लगता है जैसे यसाया नबी की किताब में भी हमें यही नजर आता है कि जब खुदा ने एक सुलगे हुए कोयला से उसके होंठों को छुआ और वो पाक हुआ, क्योंकि उसने कहा मैं नजस लोगों में रहता हूं और मेरे होंठ नापाक है। ऐसे ही मुझे यहां नजर आता है कि दानियल कहता है कि उसने मेरे होंठों को छुआ और मैंने मुंह खोला, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे कहा, ए खुदावन, यानी मैंने कहा, दानियल ने, ए खुदावन, इस रोया के सबब से मुझ पर गम का हुजूम है और मैं नातवान हूं। दानियल उस अजीम रूहानी शख्सियत से कलाम करते हुए कहता है कि ये जो रोया मैंने देखी है, इस रोया के सबब से मैं इंतहाई नातवां और कमजोर हो गया हूं। और गुजरे हफ्ते मैंने जिक्र किया था कि इस नातवानी के पीछे एक वजह तो यह भी हो सकती है कि 21 दिनों का फाका, यानी रोजा रखना। और दूसरी बात जो बड़ी मोतबर है, और वो ये कि खुदा की हुजूरी में
ठहरना बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है। ना इस्राएली ठहर सके, ना मूसा, ना साउल ठहर सका, और ना यूहन्ना आरिफ, और ना ही दानियल उसकी हुजूरी में ठहर सका। और यही बात हम यहां पर देखते हैं, और वो कहता है मैं इंतहाई कमजोर हूं और नातवा हूं। बस ये खादम अपने खुदावन से क्यों कर हम कलाम हो सकता है, अपने बारे में बात कर रहा है, खुदावन से ये क्यों कर हम कलाम हो सकता है। बस मैं बिल्कुल बेताब व बेदम हो गया, इकरार करता है कि मुझ में ताब नहीं कि मैं खुदावंद को देख पाऊं, और इसके नतीजे में मैं इंतहाई कमजोर, बेदम और पैमुर्दा हो चुका हूं। ये बातें वो बातें हैं जिन पर ऑलरेडी हमने बातें की हुई हैं, हमने इनकी तफसीर देखी हुई है। इसीलिए मैं थोड़ा सा वक्त लेकर आगे बढ़ रहा हूं ताकि और बेहतर तरीका से इन खुदा के कलाम की हकायक को हम समझ सकें। और फिर कहता है, तब एक और ने, जिसकी सूरत आदमी की सी थी, आकर मुझे छुआ और मुझको तकवीयत दी। आकर मुझे छुआ और मुझे तकवीयत दी। जब मैं खुदा के कलाम में गहरी और अमीक बातों की तलाश और खोज में रहता हूं, तो मुझे यह बात पता चलती है कि जब भी खुदा अपने लोगों से हम कलाम हुआ रूबरू होकर, उनमें खुदा की देखने की, उसके जलाल के देखने की ताब ना रही। जब मैं खुदा के बड़े बड़े अजीब कामों को देखता हूं, तो नजर आता है कि खुदा के लोगों को हौसलों की जरूरत पड़ी जब खुदा ने उनके साथ कलाम किया, भले डायरेक्ट किया या भले किसी फरिश्ता के जरिया से किया। मुकद्दसा मरियम से कलाम हुआ बजरिया जिब्राइल, और मरियम ने कहा कि यह क्यों कर हो सकता है। और फिर फरिश्ता ने मरियम को हौसला दिया, गोया ये बात जाहिर की कि खुदा की कुदरत तुझ पर साया करेगी। मतलब ये कि वो काम, वो बातें जो इंसान के लिए नामुमकिन होती हैं, वो खुदा के लिए मुमकिन है। कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। और सेम इसी तरह यहां भी हम देखते हैं कि खुदा खुद दानियल को तकवीयत देता है। और आयत 19, और उसने कहा, ए अजीज मर्द खौफ ना कर। और ये अजीज मर्द वाला जुमला हम इससे पेशतर भी देख चुके हैं आयत 11 में भी, जहां उसको कहा गया ए अजीज मर्द, यानी ए प्यारे मर्दे खुदा, यानी दानियल। और उस वक्त मैंने बात की थी कि कितनी बड़ी बात हो जब हमारे हक में खुदा की तरफ से यह बात कही जाए कि तुम मेरे अजीज हो, तुम मेरे प्यारे हो, क्योंकि तेरा दिल मुझसे लगा हुआ है। तो क्या कहा, ए अजीज मर्द खौफ ना कर, दानियल तू खौफ ना कर, तेरी सलामती हो, शालूम अलैकुम, यानी तुम पर सलामती हो, मजबूत हो और तवाना, कुव्वत पा। और जब उसने मुझसे यह कहा,
दानियल कहते हैं, तो मैंने तवानाई पाई और कहा, ए मेरे खुदावंद फरमा, क्योंकि तू ही ने मुझे कुव्वत बख्शी है। यहां एक और बात हमें नजर आती है, और वो बात यह है कि जब खुदा के लोग जिंदगी के दश्तो सहरा में कभी खौफ ज़दा हो या घबराए हुए हों या मायूस हों या हालात के सबब से थक चुके हों, तो जो बाइबल का खुदा है वो हमें उन हालात में ही नहीं रहने देता। उन हालात से वो अपने लोगों को निकालता है, और अगर उसकी मर्जी ये है कि हम उन हालात में ही रहें, तो हम उन हालात में हो सकते हैं, लेकिन इस बात को कभी ना भूलें कि वो उन हालात में हमारे साथ होता है, क्योंकि ये उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा। हम खुदावन के इन बड़े कामों के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। और जब दानियल ने तकवीयत पाई, कुव्वत पाई, जोर पाया, मजबूत हुआ, उठ खड़ा हुआ, तो फिर उसने कहा, हां खुदावन, अब मुझ में तवानाई आ गई है, मुझसे बात कीजिए, क्योंकि आप ही ने मुझे तवानाई बख्शी। और फिर दानियल कहते हैं, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं तेरे पास किस लिए आया हूं? सवाल पूछा जा रहा है दानियल से, तू जानता है कि मैं किस लिए आया हूं? और अब मैं फारस के मुवक्किल से लड़ने को वापस जाता हूं, और मेरे जाते ही यूनान का मुवक्किल आएगा। वाह! एक तरफ तो ईरान यानी फारस का मुवक्किल, ये एक बड़ी रूह की तरफ इशारा है उसकी तरफ, और दूसरी तरफ उसने ये भी कहा कि अब यूनान की तरफ से भी उसका भी मुवक्किल आएगा लड़ने के लिए। ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, रूहानी जंग है जिसकी यहां पर बात हो रही है। लेकिन जो कुछ सच्चाई किताब में लिखी है तुझे बताता हूं, उस फरिश्ता ने यह कहा, जो कुछ सच्चाई की किताब में लिखा है तुझे बताता हूं, और तुम्हारे मुवक्किल मिकाईल के सिवा इसमें मेरा कोई मददगार नहीं है। खुदा की तरफ से जवाब आता है कि फारस, जो ईरान का एक बुरा मुवक्किल, शरीर का फर्जंद, जिसने रुकावट पैदा की, और मिकाईल ने जाकर उससे जान छुड़ाई, और वो आया ताकि दानियल से बात करे। 21 अय्याम तक दानियल रोया में और इस रोजा में था, और उधर 21 अय्याम तक फारस के मुवक्किल ने उसको रोके रहा। अब इधर एक और रूहानी जंग की बात हो रही है, जो ग्रीस यानी मौजूदा यूनान की बात हो रही है। खैर, ये बातें सारी की सारी वो बातें हैं जो कौम बनी इसराइल के लिए हैं, और स्पेशली लेटर डेज यानी मुस्तकबिल में आने वाले अय्याम के ताल्लुक से। मैंने आपकी खिदमत में कहा था कि दानियल के जो 70 हफ्ते हैं, आखिरी हफ्ता अभी मुकम्मल होने को है, और ये जो बातें हैं वो उस आखिरी हफ्ते के इख्तिताम यानी सेकंड हाफ से मुताल्लिक है।
اب جو شرارت کی روحانی مخلوقات ہیں نا، میں نے افسیوں کے خط سے بھی حوالہ دیا تھا، وہ ہر ممکن طریقے سے خدا کے کام میں رکاوٹ کھڑی کرتی رہتی ہے، اور یہ شرارت کی تاثیریں آج بھی ہیں جو خدا کے کام میں رکاوٹ کا سبب بنتی چلی جاتی ہے۔ وہاں بھی بنی کہ دانیل کو خدا کی طرف سے اس رویا کا جواب نہ ملے، مگر بعض اوقات خدا خود بھی جواب دینے میں ڈیلے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ خدا کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کا اپنا بھید ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی سے بھی اس بات کا تعلق ہے۔ بعض اوقات خدا دعا کا جواب دینے میں خود ڈیلے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی ہماری اپنی کمی یا کمزوری ہو سکتی ہے جو ہماری دعا کے جواب میں ایک رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہو، جس کا ہمیں خداوند کے حضور اقرار کرنے اور معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ خدا ہے، خدا، اس جیسا کوئی اور معبود نہیں ہے، باقی تمام قوتیں اس کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات خدا جواب دینے میں ڈیلے کرتا ہے، اور ہمیں اس کی مرضی کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب دانیل جب اپنے آپ کی کمزوری کا بیان کرتا ہے اور پھر خداوند بذات خود اس کی مضبوطی کے لیے اعلان بھی کرتے ہیں۔ دانیل کی ایک روحانی جنگ ابھی جاری تھی، دعاؤں کے جواب ابھی ملنے تھے، اور مزید رویاؤں کا سلسلہ، یعنی اس رویا کے بھید کے کھلنے کا ابھی مزید باقی تھا۔ لیکن اس بات میں بھی دانیل خوش تھا کہ جب خدا کبھی مسیح کے جسم اختیار کرنے سے پہلے دانیل پر ظاہر ہوتا ہے، خدا کہیں شیروں کی ماند میں اس کو بچا لیتا ہے، کہیں میکائیل فرشتہ کو بھیج کر اس کی مدد کرتا ہے۔ اس سے دانیل کو یقین ہو گیا کہ خدا میری طرف ہے، اور رومیو 8 باب میں ہے کہ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے۔ اس سچائی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ خدا ہماری طرف ہے ہی، لیکن خود ہمیں اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچنا ہے، میں بھی خدا کی طرف ہوں یا نہیں۔ یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں تجزیہ کرتے چلے جائیں، اور یقین جانیے میری اور آپ کی جنگ لڑنے والا وہ خود ہے۔ خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی جنگ لڑتا ہے۔ خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھ کر میرے اور آپ کے حق میں وہ شفاعت کرتا ہے۔ ہم اس کی اس شفاعت کے لیے اس کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی عزت، بزرگی اور جلال کے لائق ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس باب کو مزید کھلتا ہوا
हम 11वें बाब में देखेंगे 10 बाब में तकरीबन 7वीं आयत से लेकर 21 आयत तक तकरीबन एक ही तरह की बातें हमें नजर आती हैं। लेकिन अब जब हम 11 बाब में जाएंगे तो फिर 10वें बाब की ये बातें जिन पर हमने कुछ रोशनी डाली है उनको मजीद खुलता हुआ वाज़े तौर पर क्लियरली हम देखेंगे, ताकि हम और ज्यादा उन बातों के वसीला से बरकत पा सकें। आज मुझे और आपको अपने बारे में यह सोचने की जरूरत है, जब मैं कमजोर होता हूं तो खुदावन मेरा जोर बनता है। क्या मैं अपने खुदावन का उसके हुजूर इस जोर के बख्शने के लिए शुक्रगुजारी करता हूं? जब मैं इंतहाई नातवा होता हूं और यूं लगता है कि जब चारों तरफ मेरे दुश्मन हैं, तो उस वक्त क्या मुझे एहसास होता है कि मेरी जंग लड़ने वाला मेरा खुदा है? यह गीत गाना बहुत आसान है, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। और तुहाडी भी लड़दा है कि नहीं? यह बात खुदावन मुझसे और आपसे इन आयात के मुताबिक पूछ रहा है। मैं किसी का तरफदार नहीं हूं, खुदावन कहता है। मैं तुम्हारे लिए जंग लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम उठो तो सही, स्टेप तो लो। और हमारा खुदा यकीनन हमें संभालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसलिए मेरे अजीज भाइयों बहनों, आए हम उसका दामन कभी ना छोड़ें। हालात हमारे रूहानी टायरों से हवा निकालने की हर मुमकिन तरीके से कोशिश करेंगे, हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। हालात के सबब से हम इंतहाई टेंस और मायूस हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम तर हालात में अपना ताल्लुक खुदावन के साथ और मजबूत करते चले जाएं, क्योंकि हमारी कुमक खुदावन से है, दुनिया की तरफ से नहीं है। खुदावन मुझे और आपको आज इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। छोटी सी दुआ के साथ मैं इख्तिताम करूंगा। ऐ बाप, हम शुक्र अदा करते हैं आपकी लाजवाल मोहब्बत के लिए और आपके प्यार के लिए जो बयान से बाहर है। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमसे आज बात की है, और यकीनन जब हम कमजोर हो जाते हैं, नातवा हो जाते हैं, तो आप हमारी मदद करते, हमें संभालते हैं। जलाल आपके नाम को मिले। ओ खुदावन, मुमकिन कीजिए कि हम आपके साथ लिपटे रहें और आप हमारी जंग मुसलसल लड़ते रहें, क्योंकि जब आप हमारी तरफ हैं तो कौन सी चीज या कौन सा शख्स हमारे बरखिलाफ खड़ा हो सकता है? हम आपकी तरफ देखते हैं। हमारी जिंदगियों में मौजूजात कीजिए, और खुदावन हर वो कमी कमजोरी जो हमारी जिंदगियों में जिस्मानी या रूहानी पाई जाती है, अपने कुदरत वाले नाम में उसे दूर कीजिए और अपने नाम को हमारे वसीले से जलाल और इज्जत बख्शिए। आज इस वक्त हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद ने चाहा तो फिर हम बाब 11 से अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। तब तक दुआ है कि खुदावंद
آپ سب کو اپنے پروں کے سائے تلے محفوظ رکھے. Have a great time. Thank you. www.newlifeinstitute.org